So we have 30 participants and we can start with the lecture after looking at the कारण of रक्त गुल्म के कारण देखने के बाद let us look into the लक्षण of रक्त गुल्म. Now one thing we should remember is रक्त गुल्म या रक्तज गुल्म जो है उसमें वात की वृद्धि और रक्त की दुष्टि ये दोनों चीजें होती हैं. वात की वृद्धि और रक्त की दुष्टि दोनों चीजें होती हैं. तो प्लेन वातज गुल्म होगा तो उसमें रक्त की दुष्टि नहीं होगी, वात की वृद्धि होगी सिर्फ. लेकिन रक्त गुल्म में रक्त की दुष्टि भी होती है. रादर यहाँ रक्त से आर्तव ये वर्ड एक्सपेक्टेड है. आर्तव ये वर्ड एक्सपेक्टेड है बिकॉज रक्त गुल्म ओनली हैपन्स इन फीमेल्स. सो रक्त गुल्म इज अ डिसीज, रक्त गुल्म इज अ रोग विच हैपन्स ओनली इन फीमेल्स, दैट टू ओनली इन द फ्रॉम मेनार्च to menopause. So rakta gulma will not happen to a female before menarche, periods आने के पहले, before 13-14 years it will not happen, and after 45-50 years it will not happen. You will not see rakta gulma in a female who is 8 years old or who is 70 years old. So this is something which relates to artav. The rakta word here relates to artav in females. Okay, so how rakta gulma होता क्या है? रक्त गुल्म में उनका कहना है कि रक्त गुल्म पिंडाकार होता है. जैसे बाकी गुल्म पिंडाकार होते हैं वैसे ही रक्त गुल्म पिंडाकार होता है. लेकिन यहाँ पर द लोकेशन इज स्पेसिफिकली इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. द लोकेशन इज स्पेसिफिकली इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मोर ऑफन इन द यूटेरस, मोर ऑफन इन द यूटेरस. तो ये पिंडाकार होता है, हस्तपाद रहित होता है. नाउ whatever growth in the uterus usually coincides to a fetus. तो यहाँ पर fetus भी पहले 2 महीने तक पिंडाकार होता है. It is only after the 2nd month that the buds of your hands, feet, head and tail start occurring or come into vision. So तब तक ये पिंडाकार होता है. वैसे ही गर्भ के जैसे ये गुल्म भी यूटेरस में होता है और पिंडाकार होता है, हस्तपाद रहित होता है, हाथ और पांव के बड्स नहीं होते, दीर्घ काल में स्पंदन करता है. सो यू विल गेट अ स्पंदन और अ फिब्रिलेशन, बट इट विल नॉट बी एज फ्रीक्वेंट एज इन द फीटल हार्ट. तो दीर्घ काल में स्पंदन होता है, मतलब अब स्पंदन हो जाए तो बाद में 5, 7, 10, 15 मिनट या आधा घंटे के बाद स्पंदन होगा. गर्भ के सभी लक्षण दिखते हैं. गर्भ के सभी लक्षण दिखते हैं मतलब आर्तव बंद हो जाता है, स्तन से दूध आना चालू हो जाता है, उदर भारी लगना चालू हो जाता है, अरुचि आती है. तो ऑल दीज गर्भ के लक्षण जो हैं वो दिखना चालू हो जाते हैं. Now, why is this that the garbha ke lakshan are happening? Why is this that the garbha ke lakshan are happening? It is very simple that the uterine bed growth, the uterine bed growth is linked to different hormones. Is linked to different hormones, and all these hormones, when there is growth in the uterus, what happens is the hormones which are favorable for pregnancy, the hormones which are favorable for pregnancy have started increasing. So that is why when a particular hormone is increasing, so probably when LH levels are going down, luteinizing hormone levels are going down, then the stimulating hormone or the not oxytocin, right? So oxytocin, not oxytocin, but I don't recollect the name of the hormone, but that hormone which stimulates the uterine bed is going to increase, or the fetal stimulating hormone is going to increase. Similarly, the LH is also going to increase because all these hormones are interrelated. Once the body senses that there is a growth in the uterus, it will prepare the breast for feeding. So similarly, lactating hormone is also going to increase. That is why you get, even in fibroid, sometimes you get milk secretion through the breast, though there is no garbha inside. As I said, आर्तव दर्शन के काल में रक्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है. वृद्ध या कुमारिका को रक्तज गुल्म नहीं होता. And this is what is found in actual practice also.
Uterine fibroids. You know what is the best treatment for uterine fibroids? The best treatment for uterine fibroids is to get pregnant. Once you get pregnant and once you have a delivery, the uterus starts shrinking. The hormones of shrinking of the uterus come to action. And when there is a shrinkage of the muscular and the spherosal level of the uterus, automatically the fibroids also start shrinking. So the best treatment for uterine fibroids is to get pregnant. Because when you get pregnant, the whole cycle of hormones is reset. And because this all is related to hormones, what happens is it only occurs in the Artav Darshan Kal, that is from the age of 14 to the age of 45 or 50 in females. Otherwise, Raktaj Gulma will not occur in females. Now here, what they have said in the next line, if you see, 10 मास के बाद रक्तज गुल्म सुख साध्य हो जाता है. Now you see one thing, this is an उत्सेद. 10 मास के बाद ये सुख साध्य हो जाता है, ऐसा कहा गया है. So probably शूल is not there in रक्त गुल्म. क्योंकि otherwise if there is शूल, अगर पेन होगा तो who will stand or who will stay for 10 months, 10 मास तक, 10 महीने तक उस शूल को लेके या उस शूल को पकड़ के कौन सा पेशेंट चलेगा? द पेशेंट विल बी इरिटेटेड. हर रोज दर्द हो रहा है और आप कहते हैं 10 मास के बाद सुख साध्य है, तो 10 मास के बाद चिकित्सा करेंगे. तो इस लाइन से शायद ये समझ में आता है कि शूल इज नॉट देयर इन रक्तज गुल्म. मतलब ये चरक ने नहीं कहा, चरक ने कहीं शूल का वर्णन भी नहीं किया है रक्तज गुल्म में, लेकिन इस लाइन से ऐसे समझ में आता है कि 10 मास तक इसको ट्रीट नहीं करते, तो 10 मास तक ट्रीट नहीं करते, इसलिए शूल ये लक्षण रक्तज गुल्म में नहीं होगा, या शूल ये लक्षण रक्तज गुल्म में रेगुलर नहीं होगा. क्योंकि अदरवाइज पेट में दर्द लेकर कोई 10 मास तक नहीं टिक सकता है पेशेंट. तो 10 मास के बाद सुख साध्य हो जाता है, ऐसा कहा गया है. इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है कि 10 मास जो है, ये 10 मास चरक ने प्रेगनेंसी का काल बताया है. तो प्रोबेबली इवन ही इज ट्राइंग टू टेल दैट रक्त गुल्म की ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी जैसी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने लिखा है कि शरीर खुद से उसको बाहर निकाल देता है. तो 10 मास के बाद जब डिलीवरी हो जाती है, तो एज आई सेड दैट इन यूजुअल कोर्सेज वी सी दैट आफ्टर डिलीवरी द फाइब्रॉइड श्रिंक्स. सो प्रोबेबली 10 महीने के बाद अगर ये फाइब्रॉइड है तो वो अपने आप शरीर से बाहर निकल जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई से दैट, एंड इन रेगुलर प्रैक्टिस ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट यूटेराइन फाइब्रॉइड में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इज गेटिंग प्रेग्नेंट, बिकॉज उसमें यूटेरस पूरा एक्सटेंड हो जाता है, जो फाइब्रॉइड है वो पूरा नॉर्मलाइज हो जाता है, और जब यूटेरस श्रिंक हो जाता है तो यूटेरस नॉर्मल इसमें आ जाता है. सॉरी. तो in usual courses we can see that fibroids after the child bearing age, मतलब 30-35 के आसपास, around 40% of the females have fibroids. 40% of the females will have fibroids, but they will be non-symptom causing fibroids. उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, मतलब उस लेडी को पता भी नहीं रहता कि उसके अंदर फाइब्रॉइड है. Then why are we going after fibroids? We are going after fibroids because of detection. We are going after fibroids because of detection. अब यूजुअल पीरियड्स के साइकिल में कभी किसी को ज्यादा आ जाते हैं, कभी किसी को 2-3 महीना नहीं आते, कम आ जाते हैं, या यू गेट डिस्मेनोरिया जिसमें वात बढ़ गया है, और अगर मेंसेस के टाइम पे पेन हो जाता है तो हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं. गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो बोलते हैं आप यूएसजी करा क्या. जब यूएसजी करवा के आता है पेशेंट तो क्या होता है, यूएसजी करवाने के बाद फाइब्रॉइड इज एन एडिशनल फाइंडिंग. Fibroid is a finding in the uterus, and then the gynecologist tries to correlate that fibroid with the symptom the female is suffering from. Many a times that fibroid is just a finding. वो एक finding है, जैसे gallstone is just a finding. Gallstones
80% of the people will have gallstones, but only 1 in 1 lakh people will require surgery. Whereas what is the current prevalence of surgery in gallstones? Current prevalence is more, maybe around 7 to 8 in 1000 will undergo surgery. So we are undergoing 70 times more surgeries for gallstones than what is required. So this is the same case with fibroids. Fibroids will be there once the आर्तव काल goes away. आर्तव काल जैसे ही चला जाता है वैसे ये फाइब्रॉइड जो है ये ऑटोमेटिकली श्रिंक करना चालू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली श्रिंक होना चालू हो जाता है. तो इसीलिए रक्तज गुल्म में शायद ये कहा गया है, निदान स्थान में भी कहा गया था और चिकित्सा स्थान में भी कहा गया है कि रक्त गुल्मे पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम. अगर रक्त गुल्म कोई भी तकलीफ दिए बिना वही है तो जितना पुराना उतना सुख साध्य, जितना पुराना उतना सुख साध्य. ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं गुल्म की चिकित्सा सूत्र पे. हमने 5 प्रकार के गुल्म देखे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज. अब इनकी चिकित्सा सूत्र पे चलते हैं. चिकित्सा सूत्र को ये करके हम आज के लिए रुक जाएंगे. इंडिविजुअल गुल्म में अलग अलग चिकित्सा बताइए. मतलब यूजुअली जैसे ज्वर की चिकित्सा जो नव ज्वर की चिकित्सा है वो वातज ज्वर की भी सेम है, पित्तज ज्वर की भी सेम है, कफज ज्वर की भी सेम है. नव ज्वर की जो चिकित्सा है वो वातज, पित्तज, कफज ज्वर की सेम है. फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क एक बार आम चला जाने के बाद चिकित्सा में फर्क आ जाता है. लेकिन गुल्म में वैसा नहीं है. गुल्म में वातज गुल्म की चिकित्सा अलग है, पित्तज गुल्म की चिकित्सा अलग है और कफज गुल्म की चिकित्सा अलग अलग है. बिकॉज एज आई सेड that these 3 doshik gulma are different categories of different diseases of different pathology or etiology which are happening in your abdomen. Vataj gulma is a separate set of diseases, Pittaj gulma is a separate set of infectious diseases, and Kafaj gulma is a separate set of obstructive diseases. So let us see what is the चिकित्सा सूत्र of gulma. ये 4 लाइन का श्लोक आपको बाय हार्ट करना है बिकॉज दिस श्लोक इज द चिकित्सा सूत्र ऑफ गुल्मा. नाउ दो इट डजंट स्पीक डायरेक्टली अबाउट चिकित्सा, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें स्नेहन देना चाहिए, स्वेदन देना चाहिए, विरेचन देना चाहिए. लेकिन गुल्म चिकित्सा में क्या करना चाहिए, किस हिसाब से या किस प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए, किस दोष की चिकित्सा प्रथम करनी चाहिए, वो इस गुल्म चिकित्सा सूत्र में दिया हुआ है. तो चिकित्सा सूत्र कहता है कफो वाते जित प्राये पित्तम शोणित एव वा यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकित्सिते. मतलब वात और कफ को जीतने के या वात और कफ को शांत करते समय अगर पित्त या रक्त, क्योंकि वात और कफ शीत हैं, पित्त और रक्त उष्ण है, तो वात और कफ की चिकित्सा करते वक्त अगर हमने उष्ण द्रव्य दे दिए तो वात और कफ तो शांत हो जाएंगे, लेकिन पित्त और रक्त जो है वो दूषित हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे. तो कफ वाते जित प्राये पित्तम शोणितम एव वा यदि कुप्यति वातस्य, मतलब पित्त और शोणित अगर कफ और वात को शांत करते समय कुपित हो जाएंगे, तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते, चिकित्सा करते वक्त, चिकित्सा की क्रिया करते वक्त, वातज कफज हर चिकित्सा करते वक्त अगर पित्त और शोणित कुपित हो गए तो यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्यम भिषग्जितम आदौ अन्ते च मध्ये च मारुतम परिरक्षिता. मतलब अगर पित्त और शोणित प्रकुपित हो गए तो इन बढ़े हुए दोषों में भिषक डॉक्टर को क्या करना चाहिए या वैद्य को क्या करना चाहिए, वैद्य को कौन सा कार्य करना चाहिए. आदौ मतलब शुरुआत में, अंते मतलब अंत में, और मध्य मतलब बीच में, मतलब चिकित्सा के तीनों चरण में पूरी चिकित्सा करते समय मारुतम परिरक्षिता. अब मारुतम परिरक्षिता का क्या मतलब है? मारुत ऐसा दोष है या वात ऐसा दोष है जो बढ़ने पर प्राण का नाश कर देता है.
जो वृद्ध होने पर प्राण का नाश कर देता है। तो यहाँ पर परिरक्षितः मतलब उसको कंट्रोल में रखो। कोई भी ट्रीटमेंट गुल्म में जब दे रहे हैं तो इतना ध्यान रखो कि वात पे कंट्रोल होना चाहिए, वात बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वात बढ़ेगा तो गुल्म बढ़ेगा। गुल्म जो है वो वात प्रधान रोग है। तो यहाँ पर वात बढ़ेगा तब गुल्म बढ़ेगा। या दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट करते वक्त कोई भी दोष यथोल्बणस्य दोषस्य, कोई भी दोष बढ़ जाए, लेकिन भिषक का एक ही कार्य है, तत्र कार्यम भिषक जितम। अच्छे वैद्य का एक ही कार्य है कि आदौ अंते च मध्य च मारुतम परिरक्षिता। शुरुआत में, मध्य में और अंत में पूरी चिकित्सा के तीनों चरण में पूरी चिकित्सा करते समय वैद्य को एक ध्यान रखना जरूरी है कि वात को कोई भी कारण से बढ़ने नहीं दे, वात को कोई भी कारण से बढ़ने नहीं दे, वात का रक्षण करे, वात को कंट्रोल करे। क्योंकि अगर वात हाथ से निकल जाएगा तो रुग्ण भी हाथ से निकल जाएगा, वात हाथ से निकल जाएगा तो रुग्ण भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए इस श्लोक का अर्थ यह है कि कोई भी दोष का गुल्म हो, कोई भी दोष का गुल्म हो, कोई भी चिकित्सा आप दे रहे हो, तो ध्यान रखना यह है कि हमेशा वात को कंट्रोल में रखना चाहिए, वात की रक्षा करनी चाहिए और वात की रक्षा करते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। तो वात को रोकने के लिए या वात को कम रखने के लिए व्हाट आर द उपक्रम, वी अगेन गो टू फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में दोषोपक्रमणीय, इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट ईयर का नॉलेज जो है वो तीनों साल काम आता है, रादर नॉट तीनों साल, इवन लाइफ लॉन्ग काम आता है फर्स्ट ईयर का नॉलेज। और फर्स्ट ईयर में हम यूजुअली डिप्रेस होके या डर के ठीक तरह से नहीं पढ़ते। तो जितने भी वात के उपक्रम हैं उसमें 2 या 3 उपक्रम सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। फर्स्ट ईयर के पहले अध्याय में लिया गया है कि बस्ति विरेको वमनो तथा तैलम घृतम मधु धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। तो बस्ती, तो सभी प्रकार के गुल्मों में बस्ती ये प्रधान कर्म रहेगा। दूसरा, क्योंकि बस्ती जैसी कोई चीज वात को कंट्रोल नहीं कर सकती, बस्ती जो है उसको आधी चिकित्सा बोली गई है क्योंकि वात के दोषों को जीत करती है और वात के दोष या वात के रोग ज्यादा होते हैं। तो बस्ती इज वन ऑफ द मेन ट्रीटमेंट। द सेकेंड ट्रीटमेंट इज अलग अलग टाइप के स्नेह, अलग अलग टाइप के स्नेह ज्यादा करके घी, अलग अलग, क्योंकि तेल हम पी नहीं सकते लेकिन घी हम पी सकते हैं। तो तेल के अभ्यंग, अभ्यंग तेल से, और पेट में लेने के लिए स्निग्ध पदार्थों वाला घी। तो घी इज सिर्फ ये चिकित्सा सूत्र समझने से हम चिकित्सा कर सकते हैं। देखो, तो अलग अलग प्रकार के घी, घी वात शामक भी होता है, घी कफ पित्त शामक भी होता है, और अगर ठीक प्रकार से सिद्ध किया जाए, कफघ्न द्रव्यों से सिद्ध किया जाए, तो घी जो है वो त्रिदोष नाशक होता है। तो स्नेहन के लिए अभ्यंतर अलग अलग प्रकार के घी दिए जाते हैं, बाह्य स्नेहन के लिए अभ्यंग किए जाते हैं, नीचे से वात को शांत करने के लिए, पक्वाशयस्थ वात को शांत करने के लिए अलग अलग प्रकार के बस्ती दिए जाते हैं। और वात की जो गति है, वात की जो गति है वो नीचे की तरफ है, अधोग गति होती है वात की यूजुअली। तो नीचे की तरफ करने के लिए अलग अलग प्रकार के अनुलोमक, संसरण और विरेचन द्रव्य दिए जाते हैं। इन चीजों को हम चिकित्सा में जब यूज करेंगे तो हम वात को कंट्रोल में रख सकते हैं। देखो 4 लाइन का श्लोक है, इस श्लोक में कहीं कुछ दिया नहीं है, लेकिन अगर ये श्लोक एग्जाम में आता है तो आप इस पे 4 पेज लिख सकते हो, 3 पेज तो आराम से लिख सकते हो। तो सिंपल सा है कि अंडरस्टैंड द श्लोक, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अप्लाई वॉट एवर यू हैव लर्न इन द लास्ट ईयर्स। जितना भी आपने पिछले सालों में पढ़ा है उसको अप्लाई करो और उसको लिख दो। ऐसे पेपर लिखा जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ एनीबडी हैज अ डाउट यू कैन आस्क, बट अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 hour. So thank you so much. And for those people who yet not given the attendance, please don't give the attendance twice.
एंड देयर आर सम पीपल जो आके छुट्टियों में भी अटेंडेंस दे जाते हैं। प्लीज नोट दैट जब आप अटेंडेंस देते हो तो उसमें डेट टाइम सब आता है, तो छुट्टियों में दिया हुआ अटेंडेंस काउंट नहीं होता, या लेक्चर के बाद दिया हुआ 4:30 बजे दिया हुआ अटेंडेंस काउंट नहीं होता। तो आप अपना टाइम और मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि जो 1 से लेके 9 तक के बच्चे हैं, दोज स्टूडेंट्स हु हैव रोल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, kindly don't add a zero before your kindly don't add a zero before your roll number। सिंगल डिजिट का रोल नंबर लिखना, ताकि वो लाइन से आता है। अगर आप जीरो डाल देते हैं तो वो टेक्स्ट में चला जाता है और फिर वो नीचे आता है सबसे, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो अगर आप नंबर मतलब सिंगल डिजिट नंबर लिखेंगे फॉर रोल नंबर फ्रॉम 11 to 58 नो प्रॉब्लम, बट फॉर रोल नंबर 1 to 9 डोंट ऐड अ जीरो बिटवीन बिफोर योर नंबर। 0902 ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ 2 से 9 लिखना है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लिंक। हैव अ वेरी नाइस डे। वी मीट अगेन ऑन सैटरडे।